physics class and my YouTube channel, that is Physics Friction of Minds. So I am back with the next point of this chapter, that is electromagnetic induction, and your next point is eddy current. Okay, so in this lecture we'll discuss the eddy current. Okay, so the very first question arises and is that what is mean by eddy current? Okay, so eddy current jo hai, it's a kind of circulating current. Okay, what I said, this eddy current is a kind of circulating current. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमें करंट पता है, राइट? सो एडी करंट जो है काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट है. इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने के वजह से ये जो करंट कंट्रीब्यूट होता है इसे हम कहते हैं एडी करंट. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एडी करंट कब जनरेट होता है. जैसे हमने देखा कि इंड्यूस्ड करंट कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना होता है, जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तब क्या होता है, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है. सो वो इंड्यूस्ड करंट का फेनोमेना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होता है, ये हमें पता है. तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर एडी करंट ये सर्कुलेटिंग करंट है तो ये एडी करंट जनरेट कैसे होता है. ओके, सो इट्स आंसर इज आल्सो electromagnetic induction. So the eddy current is based on the phenomena of electromagnetic induction. Okay, so how this current is generated, what is this current? Now let's see. First of all, as this eddy current, which is a kind of circulating current, is based on the phenomena of electromagnetic induction, so you should know what is mean by electromagnetic induction, जो कि आपके चैप्टर का ही नाम है और चैप्टर के स्टार्ट से right from the first lecture we are discussing the same phenomena again and again. So देखो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. क्या होता है, सपोज ये आपका मैग्नेट है और यहाँ पे कॉइल है इस तरह से, जिसे आप लगाया गैल्वेनोमीटर से. सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. So what happens when you move this bar magnet, when you keep this coil at rest, and when you move this bar magnet towards the coil, what happens? Bar magnet is there, magnetic field is there, so magnetic flux जो है क्या हो गए, इस कॉइल के साथ लिंक हो गए. अब जब आप इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल लिंक विद द कॉइल. That means the flux link with the coil will increase, and when you will move this bar magnet away from a coil, what will happen? The flux which was linked with the coil will decrease. Now this increase or decrease in flux combinedly called as change in flux, right? And this change in flux produces what? It produces induced EMF in this coil according to Faraday's law, and as the induced EMF is there, induced current will flow through a coil and galvanometer will give you a deflection. So this is how the phenomena of electromagnetic induction takes place, and this is how this induced current is produced in a coil. So इस तरह से induced current produce होता है और ये electromagnetic induction का phenomena होता है, ये हमें पता है. ठीक है, so अब ये induced current के बारे में हमें सब कुछ पता है कि इंड्यूस्ड करंट क्या है, ये कैसे आया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना से आया. अब हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है एडी करंट. तो क्या ये एडी करंट और ये इंड्यूस्ड करंट सेम होगा? सो आंसर है नो. आंसर इज नो. एडी करंट इज अ डिफरेंट वन एंड दिस इंड्यूस्ड करंट इज अ डिफरेंट वन. ओके, बट the basis of both the current is same, and that is the phenomena of electromagnetic induction. So दोनों का बेसिस सेम है, दोनों एक ही फेनोमेना की वजह से जनरेट हो रहे हैं, that is electromagnetic induction. तो फिर इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्या डिफर करना पड़ेगा so that हमें एडी करंट मिलेगा. तो देखो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सपोज यही हमारा मैग्नेट है, ये हमारा बार मैग्नेट है इस तरह से, और यहाँ पे पहले हमने कॉइल ली थी जो वायर से बनी हुई है इस तरह से, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा था इस कॉइल में से, राइट? अब हम थोड़ा सा डिफरेंस ये करते हैं
कि सपोज हमने यहाँ पे कॉइल ना लेते हुए एक कंडक्टिंग प्लेट ली है, क्या ली है, एक कंडक्टिंग प्लेट, एंड यू नो दैट as its plate is made up of a metal, तभी हम उसे conducting plate का, and you know that inside the metal the free electrons are there which moves randomly. ये basic knowledge आपको पता है, ठीक है। तो हमें actually difference देखना है between the eddy current and the induced current. So instead of taking a coil having n number of turns, we have replaced this coil just by a one conducting plate which is uniform, ठीक है। इस तरह से पूरी एक ये plate है conducting plate, okay। सो अभी कंडक्टिंग प्लेट अगर मेटल से बनी हुई है तो आपको एक चीज पता है कि मेटल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन यू डज नॉट प्रोवाइड एनी पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज यहाँ तो करंट इंड्यूस करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का सवाल ही नहीं उठता। सो व्हाट हैपेंस इन इट्स ओन स्टेट, दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये चीज आपको पता है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड दे मूव्स विद अ डिफरेंट स्पीड, ओके। सो अब क्या करो, सेम एक्टिविटी करो, just move this bar magnet towards the coil. So what will happen, again magnet is there, so magnetic field will be there, so magnetic lines of force will be there, so these lines of force will contribute a magnetic flux and this magnetic flux phi will link with this conducting plate, okay। अब जब आप इस बार मैग्नेट को इस कंडक्टिंग प्लेट की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, यहाँ पे क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड दिस कंडक्टिंग प्लेट जो कि रैंडम स्टेट में थे, अब क्या होंगे, इट विल मूव लाइक दिस, इट विल सर्कुलेट लाइक दिस, इन दिस फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप, ओके। इस तरह से सर्कुलर लूप्स में वो मूव करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में मूव कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली कोई करंट ही जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, और उसी करंट को कहते हैं एडी करंट, अंडरस्टूड। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड इनिशियली दैट एडी करंट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। अब एडी क्यों कहा उसे, यू नो द मीनिंग ऑफ एडी। सिंपल सा एग्जांपल है, एक स्टोन लो और स्टिल वाटर सरफेस, एकदम स्थिर जो होता है पानी, उसमें वो स्टोन ड्रॉप करो, क्या होता है, हमें ऐसे रिपल्स ऑब्जर्व होते हैं, राइट। इस तरह से जहाँ पे अगर स्टोन आप ड्रॉप करोगे, ये वाटर है तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे रिपल्स फॉर्म होते हैं, राइट। सो दिस रिपल्स आर कॉल्ड एज एडीज, और जिसे हम कहते हैं whirlpool like this. So the same thing is taking place here. The electrons in a conducting plate were initially in a state of random motion, all are moving with a different speeds, but as soon as you kept this conducting plate in a varying magnetic field, I use the word varying magnetic field means what, you are moving the magnet towards and away, that means you are varying the magnetic field. So as soon as you placed this conducting plate in a varying magnetic field, what happened, all those electrons moves in a particular this kind of path that we call as a circular path, and this will contribute the current, and that circulating current, because of the circulating electrons is called as a eddy current. It feels like all electrons are caught in a eddies, जैसे वाटर में एडीज फॉर्म होती है, इस तरह से जो रिपल्स फॉर्म होती है, जस्ट सेम यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जस्ट ऐसे फील करो, आप इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से ऐसे एडीज में पकड़े गए हैं और उसकी वजह से वो अब इस तरह से घूमेंगे जैसे साइक्लोन घूमता है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड एज अ एडी करंट, विच इज काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, एंड हियर all electrons will move with a different speed and along this circular path with a different radius depends on their speed, okay. So they will contribute a current, they will swirl in kind of the circular path and will contribute the current, and that current is called as eddy current. So this way generation of eddy current takes place, okay. So for the induced current, for the eddy current, the basis is same, that is electromagnetic induction, but जो नॉर्मल करंट हमारा होता है, राइट, या फिर जो इंड्यूस करंट होता है वो इस तरह से फ्लो होता है वायर में, फिर हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट ये करंट जो है, ये एडी करंट जो है, ये इस तरह से फ्लो होता है सर्कुलर फॉर्म्स में, एडीज के फॉर्म्स में, व्हर्लपूल्स के फॉर्म्स में, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ
eddy current. Understood? So for the eddy current, you have to just replace your coil of a wire by a conducting plate. Okay, that means we can say any kind of conductor. Understood? So this is a simple kind of current that we call as a eddy current, and not necessarily कि always you will keep this conducting plate at rest and you will provide a varying magnetic field. Okay, what you can do, just keep this magnet stationary. मैग्नेट अगर स्टेशनरी है मतलब मैग्नेट अगर रेस्ट पे है, तो अब क्या करो कि आप इस कंडक्टिंग प्लेट को मूव करो. मतलब दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को मूव करो, या फिर इसको कांस्टेंट रखो, इसको मूव करो. यू आर डूइंग अ रिलेटिव मोशन, एंड वेयर देयर इज अ रिलेटिव मोशन द phenomenon of EMI takes place. Okay, but as you have used here a conducting plate, so now these electrons will move in this kind of circular path in terms of eddies. Okay, and that's why we call it as a eddy current. Understood? So this is a simple phenomenon of eddy current. Okay, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि what is job of eddy current. ठीक है, अभी एडी करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है. तो अभी ये इस एडी करंट का जॉब क्या है, ये क्या करता है. ठीक है, तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और इसके बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस भी है जो हमारे न्यू टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, बट हम हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करो तो आपको ये एडी करंट का जो फिनोमेना है जस्ट हाफ पेज का दिया है, जिसमें कुछ भी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत सारी मिसिंग है. सो यहाँ पे हम हर चीज़ कवर करेंगे. ठीक है, सो अब एडी करंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया. एडी करंट जनरेट कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जॉब ऑफ एडी करंट. एडी करंट का जॉब क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. ओके, सो देखो ये समझाने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी हम करेंगे. ठीक है, सिंपल सी एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि सपोज ये आपके पास एक फिक्स रिजिड सपोर्ट है. ठीक है, इस फिक्स रिजिड सपोर्ट से आपने क्या किया, एक प्लेट को, एक मेटालिक प्लेट को, बिकॉज आपको पता है एडी करंट स्टडी करने के लिए हमें कॉइल नहीं तो क्या चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट चाहिए. राइट, सो सपोज यू हैव अ फिक्स्ड point of suspension, rigid support from which you have suspended this conducting plate by means of this inextensible string. ठीक है, अब आप क्या करो, पेंडुलम की तरह इसे ऐसे सस्पेंड करो, मतलब पेंडुलम की तरह इसे इस तरह से ऑसिलेट करो. ठीक है, ओके, एंड इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्टडी करो. सपोज इसका पीरियोडिक टाइम है ऑसिलेशंस का 10 सेकेंड. ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी हमने की. ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पेंडुलम को, अब इसे हम पेंडुलम ही कह देते हैं, सिर्फ यहाँ पे बॉब ना यूज करते हुए कंडक्टिंग प्लेट यूज किए. ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने सिर्फ इस कंडक्टिंग प्लेट को पेंडुलम की तरह स्विंग किया, ऑसिलेट किया और उसका पीरियोडिक टाइम नोट किया जो कि है 10 सेकेंड. ओके, अब हम क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में. सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक 3D डायग्राम बना के रखी है पहले से, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो. और ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी. टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है वो भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बट पहले इस 3D डायग्राम से हम फेनोमेना को जो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया कि अब ये सिस्टम एज इट इज है, सिर्फ क्या किया, यहाँ पे 2 पोल्स लगा दिए मैग्नेट के इस तरह से. मतलब अब जो आपकी ये स्विंगिंग सिस्टम है, जो आपका पेंडुलम है, इसे आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इन बिटवीन 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, सो सपोज ये इस तरह से 2 आपके पास क्या है, 2 इस तरह से पोल्स है. तो अब इन 2 पोल्स के बीच में आपका पेंडुलम इस तरह से स्विंग होगा, इस तरह से. ठीक है, ये 2 पोल्स है, इस तरह से स्विंग होगा. तो इमेजिन कर पा रहे हो आप. ओके, सो इमेजिन करो कि ये 2 पोल्स है, ये यहाँ से फिक्स रिजिड सपोर्ट, ये यहाँ से कंडक्टिंग प्लेट, और ये 2 पोल्स के बीच ये आपकी प्लेट इस तरह से मूव हो रही है. ओके, सो सेम सिस्टम मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है. ये आपके 2 पोल्स और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये आपकी प्लेट इस तरह से, ये इस तरह से ये 2 पोल्स के बीच में क्या करेगी, मूव करेगी. ओके, अब
Now here two poles are there, right? So magnetic field will be there and you know that the lines of force will start from north to south like this. इस तरह से lines of force जो है वो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाएगी, ये चीज हमें पता है. ओके, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. और अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करो, मैंने पहले ही कहा है आपको, एडी करंट के लिए आप तो मैग्नेट स्टेशनरी रखो, इस कंडक्टिंग प्लेट को मूव करो या फिर कंडक्टिंग प्लेट को स्टेशनरी रखो, फील्ड को वेरी करो, मतलब मैग्नेट को मूव करो. तो हमने यहाँ पे दो पोल्स लिए हैं मैग्नेट के जो कि रेस्ट पे है, तो हम कंडक्टिंग प्लेट को मूव कर रहे हैं, मतलब रिलेटिव मोशन है, एडी करंट हमें मिलेगा. ओके, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ एडी करंट. एडी करंट क्या करता है, तो वो देखो. अब सेम सिस्टम आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहे हो और फिर से क्या किया, अब देखो ये ऑसिलेट होगा इस तरह से. सो दिस इज न्यू पोजीशन, दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ दिस प्लेट. ये इस तरह से, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर से इधर जाएगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, फिर से सेकेंड स्टेप की एक्टिविटी के लिए टाइम पीरियड नोट किया, पीरियोडिक टाइम नोट किया ऑसिलेशन का, एंड वी फाउंड दैट द पीरियोडिक टाइम is 5 seconds. 5 seconds. ओके, मतलब दूसरे वे में मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 10 सेकेंड तक ये जो प्लेट है ये ऑसिलेट हुई. ओके, और फिर रेस्ट पे आ गई. और यहाँ पे जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की इस प्लेट को, तो इसका जो ऑसिलेशन है, इसका ऑसिलेशन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, डैम्प्ड हो रहा है, जिसके वजह से ये 10 सेकेंड नहीं तो 5 सेकेंड में ही क्या हो रही है, रुक जा रही है, स्टॉप हो रही है. मतलब इसके जो ऑसिलेशन है इस प्लेट के, ये कहीं ना कहीं क्या हो गए, डैम्प्ड हो गए. डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग. सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जब ये कंडक्टिंग प्लेट इस दो पोल्स के बीच में आ रही है, वहां पे कुछ तो भी अपोजिशन ऑफर हो रहा होगा, कुछ तो भी डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा. डैम्पिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स है जो एम्पलीट्यूड को कम करता है, मतलब ऑसिलेशंस जो है उसे रिटार्ड करता है. ठीक है, सो जैसे ही ये कंडक्टिंग प्लेट इन दो पोल्स के बीच में आ रही है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ तो भी इंटरनली अपोजिशन ऑफर हो रहा है, और उस अपोजिशन की वजह से इसके जो ऑसिलेशंस है वो 10 सेकेंड नहीं तो अब रैपिडली 5 सेकेंड्स में ही स्टॉप हो रहा है. राइट, सो देखो क्या होता है. ठीक है, सी व्हाट हैपेंस व्हेन दिस, जब ये कंडक्टिंग प्लेट यहाँ पे है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा. राइट, सो अब जैसे ही ये प्लेट स्विंग होके ऑसिलेट होके इस मैग्नेटिक फील्ड में आई, तो अब क्या होगा बताओ. जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आती है, field lines are there, so flux will link with the coil. Initially flux 0 था outside the field, but when it arrived inside the field, now the flux link with this conducting plate will increase, right? So as there is an increase in flux link with this conducting plate, now the electron will start to move in a spiral path, and that's why what will happen, that's why the eddy current will set up in this conducting plate. इस तरह से एडी करंट सेटअप होगा. ठीक है, तो अब ये एडी करंट क्या करता है, ये एडी करंट लेंज लॉ को फॉलो करता है. एडी करंट हमारा इफेक्ट है, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इफेक्ट क्या करता है, कॉज को हमेशा अपोज करता है. सो वैसे ही अभी ये जो एडी करंट इस प्लेट में जनरेट हुआ, ये क्या करेगा, कॉज को अपोज करेगा. कॉज क्या है, कॉज क्या है आपका, किसके वजह से ये एडी करंट जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स. सो जिस फ्लक्स ने खुद को इंक्रीज करके इस प्लेट में एडी करंट जनरेट किया, अब ये एडी करंट क्या करेगा, इस फ्लक्स को ही, मतलब इस कॉज को ही अपोज करेगा. तो जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, एडी करंट अब उस इंक्रीज इन फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा. अंडरस्टूड. और डिक्रीज कब होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से बनेगी, the side of this conducting plate which is facing this pole will act as a north pole. नॉर्थ पोल की तरह एक्ट होगी. मतलब करंट कैसे होगा, इस तरह से. तो देखो ये अगर इस तरह से करंट में ड्रॉ करूँ, इस तरह से लाइक दिस, अगर ये करंट ऐसा है, तो ये देखो थंब बाहर आ रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, और थंब मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपल्शन की वजह से ये
कॉइल, ये कंडक्टिंग प्लेट दूर जाएगी, जैसे ही दूर जाएगी जो फ्लक्स इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या किया, इस इफेक्ट ने कॉज को क्या किया, अपोज किया। अंडरस्टूड? सो ईडी करंट फॉलोज द लेंज लॉ। अपोजिशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली उसके जो ऑसिलेशंस है, उस कंडक्टिंग प्लेट के जो ऑसिलेशंस है वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, रिटार्ड हो गए। और रिटार्ड अगर हो रहे हैं मतलब डैम्प्ड हो रहा है, और डैम्प अगर उसके ऑसिलेशंस रिटार्ड हो रहे हैं, डैम्प हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली धीरे 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 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होते जाएगा। और इनिशियली जो ज़्यादा टाइम ले रहा था ऑसिलेट होने में, अब उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई when we place the same system inside this two poles of a magnet or inside the magnetic field, the oscillations were damped, that we call as electromagnetic damping. इसे क्या कहते हैं, electromagnetic damping. Okay, so you can use it as application that where you don't want more oscillations. So in that case you can place that pendulum in between the two poles of a magnet so that those oscillations will be retarded, it will be damped because of this eddy current generated. Understood? Okay, so ये इस तरह से जॉब है eddy current का. What is the job? What is the job of eddy current? Eddy current also opposes the change in flux. That means it also opposes the cause which has produced it. तो ऑब्वियसली ना, ये प्लेट यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ आई, मतलब प्लेट ने खुद को ऑसिलेट करके मूव करके वही प्लेट में क्या किया, ईडी करंट जनरेट किया। और वही ईडी करंट क्या कर रहा है, उसी प्लेट के ऑसिलेशंस को रिटार्ड कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द जॉब ऑफ ईडी करंट. ओके, सो ये चीज भी आपको समझ में आ चुकी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो एक फैक्टर और होता है, दैट इज जनरेशन ऑफ हीट. नाउ हाउ, कैसे हीट जनरेट होती है एडी करंट के वजह से. ठीक है, तो वो देखो, एक पावर का फॉर्मूला आपको पता है, I²R, राइट. पावर मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू I²R. और ऑब्वियसली ये एनर्जी जो होती है वो होती है हीट एनर्जी. ठीक है, मतलब वन थिंग इज वेरी क्लियर, where there is a current, now we call this current as a eddy current. Where there is a current, there is a energy. Now this energy is called as a heat energy. So obviously here eddy current is getting generated. So जहाँ पे eddy current है तो वो conducting plate में क्या होगा, according to this relation क्या होगा, एक एनर्जी जनरेट होगी. उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी, एंड दैट कंडक्टिंग प्लेट विल बी हीटेड अप टू द लार्ज एक्सटेंट. अंडरस्टूड? सो अब ये भी समझ में आ गया. बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि हीट एनर्जी अगर इस कंडक्टिंग प्लेट में जनरेट हो रही है, हीट एनर्जी अगर इस कंडक्टिंग प्लेट में जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ ईडी करंट, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि एनर्जी खुद से तो आई नहीं. अगर ये एनर्जी यहाँ पे है तो ये एनर्जी कहाँ से आई. तो जब आपका ये पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा था तो उसे कौन सी एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी. अब धीरे धीरे उसके ऑसिलेशंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. मतलब अगर ऑसिलेशंस डिक्रीज हो रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस्ड हो रही है, राइट. अब अगर मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस्ड हो रही है तो ये रिड्यूस हुई हुई मैकेनिकल एनर्जी कोई दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, और वही दूसरी एनर्जी है हीट एनर्जी. सो व्हेन योर पेंडुलम ऑसिलेट्स इट हैज मैकेनिकल एनर्जी, राइट, एंड व्हेन it oscillates, it generates the eddy current in this conducting plate. This eddy current opposes the oscillation, and that's why mechanical energy decreases, and that's why this decrease in mechanical energy slowly converts into heat energy. And एक टाइम ऐसा आएगा जब eddy current oscillations को totally oppose कर देगा, तो आपकी जो कंडक्टिंग प्लेट है वो मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगी, और जब वो मीन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जीरो. अगर ये एनर्जी पूरी जीरो हो गई मतलब पूरे के पूरे एनर्जी का कन्वर्शन टाइम में हो गया हीट एनर्जी, एंड दैट पॉइंट योर प्लेट विल हीटेड अप टू द ट्रिमेंडस एक्सटेंट. अंडरस्टूड? सो दिस इज अगेन द जॉब ऑफ eddy current, which is very interesting. Understood? So this is how in case of a eddy current
mechanical energy gets converted into heat energy or electrical energy, right? So the law of conservation is also getting followed here. Understood? So this way I told you the every single point regarding eddy current. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर इतनी हीट जनरेट हो रही है, इतनी हीट जनरेट हो रही है कंडक्टिंग प्लेट में, काय में, कंडक्टिंग प्लेट में, तो ये हीट जो है वो इतनी ट्रिमेंडस हीट है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल भी नहीं होगी, मतलब इतनी हीट की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हीट रिड्यूस करना है। अगर हमें हीट रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी कंडक्टिंग प्लेट है इसमें अगर आपने स्लॉट्स बनाए इस तरह से, ये इस तरह से अगर आपने स्लॉट्स बनाए तो क्या होगा, अब जो एडी करंट इसमें जनरेट होगा, सो इलेक्ट्रॉन्स हैज टू टेक अ लॉन्गर पाथ टू मूव राइट लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट क्या होगा, एडी करंट तो जनरेट होगा, बट अब यहाँ पे जो एडी करंट जनरेट होगा वो कैसा रहेगा, इट विल बी लेस इन मैग्नीट्यूड। और अगर करंट कम है तो क्या होगा, करंट अगर कम है तो P इक्वल्स टू I²R। P मतलब क्या, पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल्स टू I²R। अगर ये करंट कम है तो एनर्जी भी कम होगी, हीट एनर्जी भी कम होगी। तो इस तरह से आप हीट एनर्जी को मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे, एडी करंट की वजह से हीट जनरेट होगी, ट्रिमेंडस हीट जनरेट होगी, बट इफ यू वांट टू रिड्यूस द हीट, जस्ट मेक a slots to that conducting plate so that electrons will have to take a longer path to move along this circular path, and because of which जो eddy current generate होगा it will be less in magnitude, as the current is less in magnitude, so what will happen, heat energy will be reduced. Okay, so ये एक रेमेडी हम कर सकते हैं कि eddy current तो ठीक है, बट उसके डिसएडवांटेजेस नहीं चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, तो उस कंडक्टिंग प्लेट में क्या कर दो, स्लॉट्स बना दो। ठीक है, सो इस तरह से एडी करंट का ये फेनोमेना होता है। ओके, सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एडी करंट जनरेट होता है। एडी करंट ये काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट है। इट जनरेटेड बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड conducting plate or kind of conductor instead of coil. Okay, and we have seen that when the eddy current gets generated, what happens, the eddy current opposes the cause which has produced it, and that's why it opposes the oscillations, damp the oscillation. Okay, and this eddy current generates the heat, and in order to reduce that heat we can make a slots to this conducting plate so that current will be less, as the current will be less, heat will be less. Understood? और ये जो डायग्राम है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, इनफैक्ट कोई डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से डायग्राम दी है कि ये इस तरह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे भी तो हमने दो स्टेशनरी पोल्स लिए तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड टेक्स्ट बुक में इस तरह से बताइए, मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये डायग्राम तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो इसे एक्सप्लेन कैसे किया। ठीक है, ये भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है विच इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और जो कंडक्टिंग प्लेट है वो इस तरह से, यहाँ पे पिवोट है, इस पिवोट से ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ये इस तरह से सस्पेंड की है, ये पिवोट इस तरह से ये प्लेट सस्पेंड की है। अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये पिवोट से ये फ्रीली ऐसे ऑसिलेट होगी, तो जैसे ये ऑसिलेट होगी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपकी ये कंडक्टिंग प्लेट ऑसिलेट हो रही है, रिलेटिव मोशन है, तो इस प्लेट में क्या होगा, इस तरह से एडी करंट जनरेट होगा। ठीक है, सो सेम, और एडी करंट की वजह से ये प्लेट क्या होगी, हीट अप होगी। और अगर आपको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, रिड्यूस करना है, तो फिर आप क्या करो, इसमें इस तरह से स्लॉट्स बना दो। ठीक है, सो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, बट ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना उतना मतलब इजी नहीं था जितना ये है 3D में, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहीं पे विजुअलाइज हो सकती है। ठीक है, सो ये सिंपल सा फेनोमेना था हमारा एडी करंट का। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। ठीक है, सो इसका पहला एप्लीकेशन है
electric brakes. Okay, so this electric brakes are used in a train. तो ट्रेन में क्या होता है, ये इस तरह से कॉइल और नीचे जो है वो इस तरह से व्हील होता है. सो जब ब्रेक्स लगाने होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे करंट सप्लाई करते हैं. ये करंट की सप्लाई की वजह से, मतलब यहाँ का जो करंट है, यहाँ का करंट, ये इलेक्ट्रिक ब्रेक है. तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स अगर लगाने तो करंट जो है आपको कट ऑफ करना पड़ेगा. तो ड्राइवर क्या है, यहाँ का जो सप्लाई है करंट का उसे ऑफ करते हैं, जिसके वजह से जो फ्लक्स लिंक हुआ है इस कंडक्टिंग, ये व्हील है, व्हील ऑब्वियसली मेटल का बना है. सो इसे आप कंडक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो. सो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कट ऑफ किया, जो फ्लक्स लिंक है इस कॉइल के साथ, वो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, जिसके वजह से इस कंडक्टर में, इस मेटल व्हील में क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा, जिसे हम कहते हैं एडी करंट. और ये एडी करंट क्या करेगा, जिस कॉज ने उसे जनरेट किया उसे अपोज करेगा. तो व्हील अगर इस तरह से रोटेट हो रहा है तो एडी करंट ऐसे जनरेट होगा जो व्हील को धीरे धीरे क्या करेगा, स्टॉप करेगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक ब्रेक्स विच आर यूज्ड इन अ ट्रेन. ओके, टू स्टॉप द ट्रेन. नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस. अब ये इंडक्शन फर्नेस जो है ये बहुत हाई लेवल पे यूज होता है टू जनरेट अ ट्रिमेंडसली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, एक ऐसा सेटअप होता है, बहुत महंगा आता है ये इंडक्शन फर्नेस. तो इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, जिसमें आप मेटल को मेल्ट कर सकते हो. ठीक है, तो मतलब दिस इंडक्शन फर्नेस इज यूज टू मेल्ट द मेटल, बिकॉज यू नो दैट मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इजीली मेल्ट नहीं हो सकते. तो इंडक्शन फर्नेस का यूज़ करके आप मेटल को मेल्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे एडी करंट भी, मतलब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट. हाउ? टेक a metal and move the metal in a constant magnetic field, or just keep the metal stationary and provide the varying magnetic field. What will happen? The eddy current will start to flow through this metal, because the electrons will circulate in a circular path that will generate the eddy current. अब ये eddy current क्या करेगा, यहाँ पे कोई slots नहीं है, slots ना होने के वजह से this eddy current will generate a tremendous amount of heat, so that this metal will be melted easily. So this way, this concept of eddy current is also used in a induction furnace. Okay, so हमारे न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, हमारे अपडेटेड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमें एडी करंट का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा दिया है. उन्होंने इतने से कॉन्सेप्ट में हर चीज़ मेंशन कर दी, बट उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, आपको हर चीज़ कवर अप करवाई, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई किया है. एप्लीकेशंस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, बट एक्सरसाइज में आप पीछे की एक्सरसाइज देखो, उसमें पूछा गया है व्हाट इज एडी करंट एंड राइट द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा के ऐसा क्वेश्चन आता है तो एडी करंट का कॉन्सेप्ट तो टेक्स्ट बुक में दिया है, बट एप्लीकेशंस नहीं दिए हैं, एंड दैट्स वाई मैंने आपको इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ा दिए हैं, सो दैट अगर एग्जाम में आए तो आपके मार्क्स नहीं जाना चाहिए. ठीक है, सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट. आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज एडी करंट, ये कैसे जनरेट होता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग प्लेट एंड मेटल, रिलेटिव मोशन. एडी करंट क्या है, सर्कुलेटिंग करंट है. ठीक है, एडी करंट का जॉब क्या है, इट क्रिएट्स अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट. वो हीट को अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना होगा, आपको मेटल्स में स्लॉट्स बनाने होंगे. ठीक है, और उसका एप्लीकेशन, और उसमें होता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है. मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन हीट एनर्जी में होता है, और उसकी वजह से इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट होती है. हीट रिड्यूस करना है, उसमें स्लॉट्स बना दो. और एप्लीकेशंस हमने देखे, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इंडक्शन फर्नेस, गैल्वेनोमीटर में भी यूज़ होता है, स्पीडोमीटर में यूज़ होता है. तो दो एप्लीकेशंस आप ध्यान में रखो. ठीक है, सो दिस वॉज the whole concept of eddy current. I just hope you got it, because I tried my best to explain this concept. Okay, so just go for it, do it, prepare it. So in the next lecture we'll meet with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.